Equation of straight line parallel to x-axis. This is we gonna study now. Suppose we have a line AB which is parallel to x-axis at a distance b units from the x-axis. The point P is a point on the line AB such that it has coordinates x comma y, and the equation of the line AB will be y is equals to b. Any line which is at a distance of say b units from the x-axis will have the equation as y is equals to b. Remember that students, equation of x-axis is always y is equals to 0. हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, whenever we have x-axis इक्वेशन क्या होती है, y is equals to 0. Whenever we have y-axis इक्वेशन क्या होती है, x is equals to 0. Now, second topic, point slope form. Point slope form means we have to find the equation of a straight line passing through a fixed point, say P. So if we have to find the equation of this line which is passing through a fixed point P x comma y, having given a slope, आपके पास अगर एक स्लोप गिवन है लाइन की और एक फिक्स्ड पॉइंट गिवन है, तो आप उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? By the formula y minus y1 is equals to mx minus x1. Here m is the slope of the line and x1 and y1 are the coordinates. x1 and y1 are the coordinates of a point lying on the line. Suppose this is the line AB and the coordinates A dash B dash, sorry, line is A dash B dash and the coordinates of A are x1 comma y1. These coordinates lie on the line A dash B dash. So the equation of the line A dash B dash will be y minus y1 m x minus x1. M is the slope of the line A dash B dash and x1 comma y1 are the coordinates of the point lying on the line. A is lying on the line A dash B dash with coordinates x1 comma y. Now let us discuss equation of straight line parallel to y-axis. Earlier we have seen equation of line straight line parallel to x-axis. Now the line is parallel to y-axis. You can see over here AB. AB is the line which is parallel to y-axis. AB is parallel to y-axis. कितना दूर है AB y-axis से? That is a units. Whenever there is a line parallel to y-axis having a distance of a units, parallel lines के बीच की दूरी हमेशा constant रहती है. We all know the distance between two parallel lines is always same throughout. यहाँ कितनी units है? a units distance है. किस लाइन की? AB लाइन की. किससे? y-axis से. y-axis में हमेशा क्या होता है? x equals to 0. तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी सर? x is equals to a, because a is the distance between these two parallel lines. इससे पहले वाले हमने एग्जांपल में देखा था, these two lines were parallel, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? b यूनिट्स. इस एक्सिस के पैरेलल भी सर लाइन थी, x एक्सिस के पैरेलल भी. x एक्सिस पे क्या होता है? y is equals to 0. पर ये लाइन कितनी दूरी है x एक्सिस से इस लाइन की ab की? b यूनिट्स. So the equation of the line will be y is equals to b here, and equation of the line parallel to y-axis will be x is equals to a. Next topic is two-point form. What is a two-point form? Any straight line which should be non-vertical. Non-vertical line कौन सी होती है? Those lines which are parallel to y-axis. Any straight line which are non-vertical passing through two fixed point. कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन नॉन वर्टिकल होनी चाहिए और दो पॉइंट से पास होनी चाहिए, x1 y1 और b is x2 y2. Two point form we have studied in class 10 also. Y minus y1 is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 x minus x1. देखिए वन पॉइंट फॉर्म में हमारे पास स्लोप गिवन थी लाइन की, यहां हमने स्लोप कैलकुलेट करी है. बिकॉज स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? दो पॉइंट के बीच अगर
दो पॉइंट गिवन हो और आपको उस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करनी हो, यू कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला y2 minus y1 good divided by x2 minus x1. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द स्लोप. यहां आपको स्लोप नहीं गिवन थी, यहां आपको क्या गिवन था, दो पॉइंट्स गिवन थे. तो ये दो पॉइंट जो उस लाइन पे लाई कर रहे हैं उनकी हमने स्लोप निकाल ली एंड यू हैव सब्स्टिट्यूटेड द स्लोप ओवर हियर. ये इसी फॉर्मूले का एक्सटेंडेड वर्जन है, बट यहां हमारे पास स्लोप की जगह पॉइंट्स गिवन थे जिनकी वजह से हमने उसकी स्लोप निकाल ली और वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. So 1 point formula, only 1 point is given, slope is given. 2 point formula, 2 points are given. We have to calculate the slope as well as the equation of the line by using the formula. Next, let us discuss the intercepts. Next portion is intercepts made by a line on axis. Intercepts made by a line on axis. Suppose AB is a line. As you can see over here, x is abscissa, y is ordinate. X axis को हम क्या बोलते हैं, abscissa. Y axis को क्या बोलते हैं, ordinate. ये हमने क्लास 10 में तो डिस्कस पढ़ा है हमने ऑलरेडी. Now you can see ये जो लाइन है AB, ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है. On x axis it is cutting at A and on y axis it is cutting on B. तो सर जो ये OA है, दिस विल बी माई एक्स इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट का मतलब है कितना पोर्शन कोई भी लाइन सेगमेंट किसी भी एक्सिस को काटता है. सो ओ ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द एक्सिस. इंटरसेप्ट का ही मतलब होता है कि ओरिजिन से और जहां वो लाइन उस एक्सिस को काट रही है उसकी दूरी को क्या बोलते हैं हम, इंटरसेप्ट. सो ओ ए इज द एक्स इंटरसेप्ट और यहाँ एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा सर, ए हो जाएगा, ए यूनिट्स है. अच्छा सर यहां पर जाएंगे कितना होगा, ओ बी कितना होगा, बी यूनिट्स है. क्योंकि ये वाई एक्सिस पे काट रहा है तो क्या हो जाएगा, ये वाई इंटरसेप्ट. ए बी पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन दी एक्सिस. ये ए बी क्या है, ये वो पोर्शन है लाइन का जो दो एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, इंटरसेप्ट हो रहा है. एक्स इंटरसेप्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. रिमेंबर स्टूडेंट्स, एक्स इंटरसेप्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन मेजर्ड टू राइट ऑफ द ओरिजिन. जब भी हम राइट ऑफ साइड ऑफ द ओरिजिन से मेजर करेंगे, राइट साइड ऑफ द ओरिजिन से मेजर करेंगे, वी ऑलवेज फाइंड एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव. क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यू ऑल नो एक्स एक्सिस क्या होती है, पॉजिटिव, वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव. अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहां एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, नेगेटिव. तो लेफ्ट में हो गया आपके नेगेटिव और राइट साइड में हो गया आपके पॉजिटिव. नाउ फॉर वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट देखेंगे आप हमेशा, वाई इंटरसेप्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव अबव दी ओरिजिन. ओरिजिन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव होगा और ओरिजिन के नीचे हमेशा नेगेटिव होगा. ऑलवेज पॉजिटिव अबव ओरिजिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. और फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि नेगेटिव होता है, it will always be negative when it is below the origin. Now let us discuss line passing through origin makes zero intercepts on axis. Any line passing through the origin makes zero intercept on axis. सर इसका मतलब क्या है, सर इसका ये मतलब है अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होगी तो वो इंटरसेप्ट बिल्कुल जीरो बनाएगी दोनों एक्सिस पे. कैसे बनाएगी सर जीरो, सर क्योंकि कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है उस लाइन का. सपोज ए बी इज द लाइन एंड एक्स एक्सिस हियर वी हैव वाई एक्सिस. एज यू कैन सी कोई भी पोर्शन नहीं मिल रहा जो एक्स एक्सिस को काट रहा हो, ना वाई एक्सिस को काट रहा हो. तो वी हैव इंटरसेप्ट हियर आल्सो एंड इन एक्स एक्सिस आल्सो एज जीरो. सो एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन makes zero intercepts on x axis and y axis. Origin के coordinates क्या होते हैं, 0, 0. Now let us discuss slope intercept form. What are the slope intercept form? Equation of line with slope m and one of the intercepts on the axis. Suppose अगर आपको एक स्लोप दे रखी है लाइन की
और इंटरसेप्ट दे रखा है, तो हम लोग उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? केस 1, फर्स्ट केस इज व्हेन इंटरसेप्ट C on y axis at point 0, C मीन्स अगर आपको वो लाइन दे रखी है जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट रही है, मतलब y एक्सिस को काट रही है, किस पॉइंट पे काट रही है? 0, C पे. So here is a line L which cuts the y axis at a point 0, C. उस लाइन का स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन इज m. ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी विल फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन by the formula y is equals to mx plus c. सर m क्या है? m है स्लोप ऑफ द लाइन जो गिवन है हमें. x क्या है? x एक्सिस. व्हाट विल बी दी c? c है वो इंटरसेप्ट जो लाइन ने y एक्सिस पे काटा है. किस पॉइंट पे काटा है? 0, c. इंटरसेप्ट कितना है? c यूनिट्स. बिकॉज इंटरसेप्ट क्या होता है? ओरिजिन से जिस पॉइंट पे लाइन एक्सिस को काटती है उतनी दूरी, वो कितनी है? या c यूनिट्स. नेक्स्ट केस, केस नंबर 2. यहां तो इंटरसेप्ट हमारा कौन था? कहां था? y एक्सिस पे. सपोज इंटरसेप्ट अगर x एक्सिस पे होगा, हाउ विल वी कैलकुलेट? व्हेन इंटरसेप्ट DE और x एक्सिस एट पॉइंट D, 0. यू कैन सी ओवर हियर पॉइंट क्या है? D, 0. अब यहां जो इंटरसेप्ट कट रहा है वो हमें दे रखा है D, 0. मतलब हमारे पास ये दूरी दे रखी है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक की दूरी D दे रखी है. जब आपको इंटरसेप्ट दे रखा हो, x एक्सिस का इंटरसेप्ट दे रखा हो, then you use the formula y is equals to mx minus d, where m is the slope और x is the x axis and d is the intercept. तो आपके पास दो फॉर्मूले हो गए. द फर्स्ट फॉर्मूला इज y is equals to mx plus c जब y इंटरसेप्ट दे रखा हो, और जब भी आपको x इंटरसेप्ट दे रखा होगा, फॉर्मूला विल बी y is equals to mx minus d, where d is the x axis intercept. This equation is also known as slope intercept form. इसको हम क्या बोलते हैं? slope intercept form equation. Now let us go to the exercise number 16b. First question of the exercise 16b says find the equation of the line. हमें इक्वेशन निकालनी लाइन की whose y intercept is 2. y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो कितना है? 2. और स्लोप कितनी दे रखी है? 7. अभी आपने देखा था सर, यहां जब भी हमारे पास y एक्सिस का इंटरसेप्ट गिवन होता है या y एक्सिस पे लाइन इंटरसेप्ट हो रही होती है, फॉर्मूला क्या होता है? y is equals to mx plus c. m क्या होती है? स्लोप. स्लोप कितनी दे रखी है? 7. so y is equals to mx plus c. m की जगह 7 आ जाएगा. y is equals to 7x. और c क्या है? c वो इंटरसेप्ट है या दूरी है ओरिजिन की उस पॉइंट पे जहां एक्सिस y एक्सिस को लाइन काट रही है. इतना इंटरसेप्ट दे रखा है 2, तो c की जगह क्या आ जाएगा? फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट. आपके पास इंटरसेप्ट दे रखा है 2 और क्या दे रखा है? आपको दे रखा है इट इज इंक्लाइंड 45 डिग्री. इंक्लिनेशन दे रखा है कितना? 45 डिग्री. जब भी आपके पास इंक्लिनेशन दे रखा हो, इंक्लाइंड टू किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे इंक्लाइंड है. व्हेन इट इज इंक्लाइंड ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप. स्लोप कैसे निकालेंगे? वी नो द फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू tan थीटा. थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. अभी तक हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. तो यहाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 45 डिग्री. तो थीटा की जगह वी रिप्लेस इट बाय 45. व्हाट विल बी द वैल्यू एट tan 45? 1. m कितना आ गया? 1. क्योंकि ये x एक्सिस पे इंक्लाइंड है, वी विल यूजिंग द फॉर्मूला y is equals to mx plus c. m कितना आ जाएगा? 1. y is equals to x plus. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिफ्थ पार्ट सेज इंटरसेप्ट तो दे रखा है आपको y एक्सिस पे -5. ये सारे इंटरसेप्ट जितने भी है ये y एक्सिस पे है, तभी हम लोग ये आ रही इक्वेशन यूज कर रहे हैं y is equals to mx plus c. Here the intercept is c is equals to -5. Now we have to calculate the equation of the line.
and it is given it is equally inclined to both the axes. ये दोनों एक्सिस पे कैसी है? इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब यहां भी ए यूनिट काटेगी, उधर भी ये ए यूनिट काटेगी. इन दिस केस आल्सो इधर भी वाई एक्सिस पे भी ए यूनिट और एक्स एक्सिस पे भी ए यूनिट. ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा याद रखें, whenever the lines are equally inclined to both the axes, we get slope as positive one as well as negative one. यहाँ स्लोप पॉजिटिव वन क्यों आ रही है सर ये फर्स्ट क्वार्टर में, या नेगेटिव क्यों आ रही है सेकंड क्वार्टर में? स्लोप विल बी पॉजिटिव वन एंड नेगेटिव वन. अब ये स्लोप को कहाँ रखेंगे हम लोग? कौन से फॉर्मूला में? y is equals to mx plus c में. Here m कितना है? 1 when m is positive. m is equals to 1, y is equals to x minus 5. माइनस 5 कैसा है? y is equals to mx plus c. m कितना था? 1, c कितना था? minus 5. When m is equals to minus 1, y is equals to minus x minus 5. So we have discussed first question, first part, fourth part and fifth part. Second, zoom कर रहे हैं. Question number second says these 2 points 3 comma minus 4 and minus 1 comma 2 must satisfy or lie on a straight line. सी बॉयज एंड गर्ल्स, अगर कोई भी दो कोऑर्डिनेट दे रखे हो या 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो या n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, if they satisfy the equation of line, then we say that the coordinates are lying on the same line. Here these two coordinates 3 comma minus 4 and minus 1 comma 2 must satisfy the equation of line. satisfy का मतलब क्या है सर? LHS is equals to RHS. तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू दोस पॉइंट्स. पर यहां में क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है और हमें क्या निकालना है? हमें वैल्यू निकालनी है स्लोप की और इंटरसेप्ट की. इन 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है. सो दिस इज द x1 y1, दिस इज x2 y2. Question number 2 says, now what will be the value of m and c if the straight line y is equals to mx plus c passes through the points. इन दोनों पॉइंट से पास होती. तो पहले वाले पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में. -4 is equals to 3m plus c. सिमिलरली सेकंड वाले पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन. क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन. अब हमारे पास यहाँ 2 इक्वेशन आ रही है, -4 is equals to 3m plus c और 2 is equals to minus m plus c. इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, यू नो इट वेरी वेल. साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे और देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m एंड c. साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे सर? यहाँ से m की वैल्यू निकाल लीजिए आप. m की वैल्यू कितनी आ रही है सर? c minus 2. अब ये m is equals to c minus 2 आप इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. m की जगह c minus 2 रख देंगे. 3c minus 6 plus c कैलकुलेशन करेंगे. अब यू विल गेट c as हाफ. इस c की वैल्यू को आप इसमें यहां रख देंगे, वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे m की वैल्यू में, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m. कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट. Find the equation of straight line passing through the given point P. एक पॉइंट दे रखा है -4,7, इससे स्ट्रेट लाइन पास हो रही है और स्लोप दे रखा है -√3. आपके पास स्लोप दे रखा है दैट इज -√3. स्लोप है -√3. सर ये 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला हो गया. एक पॉइंट दे रखा है और एक स्लोप दे रखी है. तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हमने देखा था y minus y1 is equals to m x minus x1. ये फॉर्मूला था. y1 की जगह क्या आ जाएगा? y की कोऑर्डिनेट्स. इधर क्या आ जाएंगे? x1 की कोऑर्डिनेट्स. स्लोप क्या है? -√3 सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहां से आप अपनी इक्वेशन ऑफ द लाइन कैलकुलेट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दे रखा ये, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 135 डिग्री. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 135 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसके साथ है? विद द एक्स एक्सिस. tan थीटा कितना? थीटा है कितना? 135 डिग्री. तो tan 135 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan 90 प्लस थीटा. हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में
tan 90 plus theta is minus tan theta, तो tan 90 plus 45 is minus tan 45। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई स्लोप की, m की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब आपके पास स्लोप आ गया, आपके पास एक पॉइंट दे रखा है, सेम फॉर्मूला y minus y1 is equal to m x minus x1। x1 y1 क्या है सर, x1 और y1 आपके हमेशा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा, क्लास 10 में भी पढ़ा। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं, x1, y1। और स्लोप हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से निकाली है, जो कितनी आई हमारी -1। क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस होता है, हमेशा हमने पढ़ा था। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, 3 थिंग्स होती हैं उसमें, विद द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू द एक्स एक्सिस एंड अबव एक्स एक्सिस। गुड। क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड पार्ट, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। अब आपके पास सेकंड पार्ट में दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है 4,3, और ये जो इक्वेशन है लाइन की वो किसके पैरेलल है, दूसरी लाइन के पैरेलल है जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है। आपको वो लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस वाली लाइन के पैरेलल है। व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या है, दोनों की स्लोप बराबर। गुड। पैरेलल लाइंस की स्लोप बराबर होती है, परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होता है, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के बराबर। क्योंकि यहां लाइन क्या है, पैरेलल, सो वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्लोप फॉर द सेकंड लाइन। यहां से हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। आपको इक्वेशन दे रखी थी 3x + 4y इज इक्वल टू 12। आप डायरेक्टली यहां से स्लोप नहीं निकालेंगे, कोफिशिएंट आपने देखा x का 3 है तो स्लोप 3, नहीं, रॉन्ग। हमेशा हमें इक्वेशन ऑफ लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म अभी तक हमने पढ़ी है y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। तो यहां y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो c कितना हो गया पॉजिटिव 3, m कितना हो गया -3/4। सर ये -3/4 कहां से आया, आपने पहले y के जो कोफिशिएंट है उसको 1 कर लो, तो जो भी y के साथ कोफिशिएंट आ रहा है उसका डिवाइड मार दिया इक्वेशन में। तो यहां से आ गया y इज इक्वल टू 12/4, 3 आ गया -3x/4। तो यहां से आपके पास स्लोप जो है m जो है वो कितनी आ गई -3/4। ये स्लोप है सर इस लाइन की, कौन सी लाइन की, 3x + 4y इज इक्वल टू 12। क्योंकि लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जिस लाइन की हमें कैलकुलेट करनी है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो स्लोप क्या होगी, इक्वल। तो ये अगर m1 है -3/4, तो m2 भी कितनी हो जाएगी -3/4। अब आप के पास स्लोप आ गई है और पॉइंट आ गया। फॉर्मूला क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। m कितना -3/4, x1 y1 क्या है, कोऑर्डिनेट्स आपके जो दे रखे हैं 4,3, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3x + 4y - 24 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जूम कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर। ये जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है लाइन जो हमें निकालनी है, जिसकी इक्वेशन निकालनी है। अब आपके पास ये लाइन तो दे रखी है x by y, x by a minus y by y। आप इसकी इक्वेशन निकाल लें, पहले सिंप्लीफाई कर ले, एलसीएम ले लें, ab will go to that side, bx minus ay is equals to ab। यहां से आपने फिर इस लाइन को जो इंटरसेप्ट फॉर्म में थी आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। किस फॉर्म में थी, x by a minus y by b इंटरसेप्ट फॉर्म में थी, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो y is equals to mx plus c। देखिए y is equals to mx plus c जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो फिंगर से डालें, जो y is equals to mx plus c जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारी हमेशा याद रखें, y के का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होता है। y का कोफिशिएंट 1, मतलब y के साथ कुछ भी नहीं आना चाहिए, केवल 1 आना चाहिए, y अलग बाकी सारा एक। तो यहां से जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप हो जाती है हमारी। तो स्लोप कितनी आई, b/a। ये आपकी स्लोप आई है किस लाइन की, जो लाइन आपको दे रखी थी इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्योंकि ये लाइन
हमारी वाली जो लाइन जिसकी हमें इक्वेशन कैलकुलेट करनी है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप क्या होगा, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। इट मीट्स एट द पॉइंट वेयर this line y is equals to b by ax minus b meet at the point where it meets x axis। जो हमारी लाइन जिसको हमें कैलकुलेट करना है वो x एक्सिस पे मीट कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो पॉइंट क्या हो जाएगा x एक्सिस पे, x, 0। हमेशा x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x, 0। y एक्सिस पे क्या होते हैं, 0, y। आप इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ये लाइन x एक्सिस पे मीट कर रही है तो y की जगह 0 आ जाएगा, b by a x minus b। यहां से आपने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, या आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली x की। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, a। अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए x एक्सिस पे, जो जहां ये लाइन मीट करती है वो पॉइंट क्या है, a, 0। अब आपके पास एक पॉइंट आ गया, आपके पास इसका स्लोप का रिवर्स करेंगे और नेगेटिव लगाएंगे तो आपके पास स्लोप भी आ जाएगी लाइन की। m1 कितना था, b by a। और जो लाइन हमें निकालनी थी क्योंकि वो उस वाली लाइन के परपेंडिकुलर थी, जो इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी थी उसकी परपेंडिकुलर थी, तो हमने उसको रिवर्स किया और साइन चेंज किया तो हमारे पास स्लोप आ गया हमारी लाइन का। और कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास थे ही, a, 0। तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहां x1 y1 क्या है, वो पॉइंट जहां सेकंड वाली लाइन जो गिवन लाइन थी वो मीट कर रही थी x एक्सिस पे। x एक्सिस पे क्या होता है सर, y 0 होता है। तो हमने इस वाली इक्वेशन में y 0 कर दिया तो x की वैल्यू निकाल ली थी। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए थे x और y एज a, 0। अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए थे, आपके पास स्लोप आपको पता है m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 होती है। पुराने वाले की स्लोप क्या थी, b बाय a, इसका रिवर्स किया -a बाय b हो गई थी। आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म वाले फॉर्मूले में डाली, पॉइंट स्लोप फॉर्म वाले फॉर्मूले में y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x। वहां से आपने कैलकुलेट कर लिया इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 5 मेकिंग एन एक्यूट एंगल 45 डिग्री। ये जो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है वो इस लाइन के साथ बन रहा है, विद द लाइन 2x माइनस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमें उसने एक पॉइंट दे दिया और ये बता दिया कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दूसरी लाइन के साथ 45 डिग्री का है। और लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो सर इसको, इस वाली लाइन को, जो भी लाइन जब भी आपको सेकेंड लाइन दे रखी होती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। अब ये 2x माइनस y प्लस 7 की फॉर्म में दे रखी है, हमने इसको जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म कर लिया, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। अब m क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x, वो कितना है 2, और इंटरसेप्ट कितना 7। तो हमारे पास यहां से स्लोप आ गया m1 2। अब क्योंकि वो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 45 डिग्री उन दोनों लाइन का, तो tan 45 इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास था tan थीटा, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या था, ये वाली लाइन और जो लाइन हमें निकालनी है उन दोनों के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री। इस लाइन का स्लोप तो मेरे पास 2 आ गया, हमने पहली वाली लाइन का स्लोप कंसीडर कर लिया, लेट इट बी m2। ठीक है, द लाइन विच वी हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशन, वी कंसीडर इट्स स्लोप एज m2। इसका स्लोप क्या है m2, m1 2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। आपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करी वैल्यूज, यू विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ m2। m2 की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, हमेशा याद रखें, अगर जब भी आपको मॉड्यूलस मिलेगा तो मॉड्यूलस की हमेशा दो वैल्यू होती हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू। इफ कोई भी मॉड्यूलस a इज इक्वल टू वैल्यू p, तो a की दो वैल्यू पॉसिबल है, p और नेगेटिव p। क्यों सर, अगर a की जगह सपोज में -1 से मॉड्यूलस लगाने से क्या होता है सर, नेगेटिव पोर्शन हट जाता है। तो a की वैल्यू 1 हो सकती है, a की वैल्यू -1 भी हो सकती है, क्योंकि -1 की वैल्यू मॉड्यूलस के बाद क्या हो जाएगी 1। सपोज एग्जांपल के तौर पे इफ आई से a इज इक्वल टू a मॉडुलस a इज इक्वल टू 1।
अब सर अगर मैं a की वैल्यू -1 कंसीडर करूंगा तब भी मुझे 1 मिलेगा, अगर मैं a की वैल्यू 1 कंसीडर करूंगा तब भी मुझे 1 मिलेगा। तो हमेशा मॉड्यूलस के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसकी दो वैल्यू निकल सकती है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी मॉड्यूलस के बाहर की वैल्यू होती है उसको 2 पार्ट्स में लिख देते हैं। यहां मैं लिख सकता था एक को पॉजिटिव 1 और एक को नेगेटिव 1। और 1 की जगह p होगा तो पॉजिटिव p और नेगेटिव p। ऐसी यहां करेंगे, यहां आपको बन जाएगा 2 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + 2m2। एक आ गया पॉजिटिव 1, एक आ गया नेगेटिव 1। अब यहां से दो अलग अलग स्लोप निकलेंगी m2 की। एक आ गया आपके पास -3, the other one is 1/3। Substitute these values of slope। ये कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे सर? आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पॉइंट के साथ। दो इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास पॉइंट है 4,5। एक होगी आपकी स्लोप -3 पहली लाइन के लिए, दूसरी लाइन के लिए क्या होगी, एक पॉइंट हो गया 4,5 और स्लोप क्या हो गई 1/3। तो दो इक्वेशन मिलेगी आपको। कैसे? 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म वो क्या होती है सर? अभी बताया था y - y1 = m x - x1। तो x1 क्या हो गया सर आपका 0.4, y1 क्या हो गया 5, x - x1 is x - 4, y - y1 is y - 5। स्लोप क्या है? एक बार आपने 1/3 ली, दूसरी बार आपने -3 ली, वहां से आपने कैलकुलेट किया, दो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द लाइन थ्रू ए, एक पॉइंट है 4,7। ये जो पॉइंट है 4,7 मीट्स विद ग्रेडियंट m मीट्स द x एक्सिस एट p। ये जो पॉइंट है ये स्लोप m के साथ x एक्सिस को मीट करता है पॉइंट p पे। क्योंकि ये x एक्सिस को मीट कर रहा है तो x एक्सिस की जब कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x, 0। तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1, 0। स्लोप क्या थी m, स्लोप का ये पॉइंट इस एक्सिस पे मीट कर रहा है। इधर क्या -1 पे -1/m स्लोप का लाइन पे y एक्सिस पे पॉइंट r मीट कर रहा है 0, y1। क्योंकि यहां y एक्सिस है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, y। नाउ वी आर गिवन 0.83। एक पॉइंट आपको 4,7 दे रखा था, वो m स्लोप के साथ x एक्सिस पे p पे मीट कर रहा है। 4,7 -1/m के साथ y एक्सिस पे r पे मीट कर रहा है। ऐसी 0.83 दे रखा है, ये -1/m स्लोप के साथ x एक्सिस पे तो q पे मीट कर रहा है और y एक्सिस पे s पे मीट कर रहा है। y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, y, x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, 0। अलग अलग नाम दे दिए x1, 0, 0, y1। इधर x2, 0, 0, y2। फॉर पॉइंट p पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब हमें p, q, r, s इन सब की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? पॉइंट p के लिए हम लोग देखें यहां पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा सकते हैं। पॉइंट तक तो गिवन है 4,7, स्लोप भी गिवन है m। सब्स्टिट्यूट करें y - y1 m x - x1। क्योंकि ये पॉइंट जो p है ये x एक्सिस पे है तो उसका y 0 हो जाएगा। जहां जहां y आ रहा है वहां 0 कर देंगे, y की जगह 0, 0 - 7 = m x1 - 4। तो यहां से आपने x1 की वैल्यू निकाल ली m के टर्म्स में और पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्यों? पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1, 0। तो x1 की वैल्यू 0। उसने p, q, r, s को m के टर्म्स में पूछा है हमसे, कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं m के टर्म्स में, तो हमने निकाल लिए। नेक्स्ट सिमिलरली फॉर r के लिए भी ऐसे करेंगे y - y1 = m x - x1। सर याद देखिए r के लिए स्लोप क्या थी? पॉइंट r के लिए हमारे पास स्लोप थी -1/m, -1/m। फॉर पॉइंट r के लिए स्लोप थी हमारी -1/m, x - x1 y - y1। ठीक है सर। आप क्योंकि ये जो है r ये कहां लाई कर रहा है सर? y एक्सिस पे लाई कर रहा है। y एक्सिस पे जब लाई करता है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, y। अब जहां जहां x आ रहा होगा वहां 0 हो जाएगा, तो वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे r के कोऑर्डिनेट्स।
सिमिलरली फॉर क्यू, आपको सेम प्रोसीजर करना है क्यू के लिए भी और एस के लिए भी। क्या होगा सर क्यू के लिए, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, m कितना होगा सर माइनस वन बाई एम। सर ये माइनस वन बाई एम कहां से आया, क्योंकि सर q जो है x2 0, x एक्सिस पे इसलिए x2 0, ये स्लोप कौन सा लेके चल रहा है, माइनस वन बाय एम। यहां स्लोप क्या हो गया, माइनस वन बाय एम। s के लिए भी स्लोप सेम है, माइनस वन बाय एम, और वहां से भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, s के कोऑर्डिनेट्स दोनों। ओपी, अब सर ये ओपी कहां से निकलेगा, ये ओपी कहां से आएगा, सर ओपी निकालने के लिए आपको ओ पता होना चाहिए, ओ क्या है, ओरिजिन, ओ क्या है, ओरिजिन 0,0, और ओपी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से पॉइंट पी की दूरी क्या होती है, हमेशा पॉइंट की वैल्यू के बराबर होती है। अगर हम चाहें तो उसको डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो हम चाहें तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकालना है, चाहे हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट इटसेल्फ। यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया OP, सिमिलरली आप OQ कैलकुलेट कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, OP डॉट OQ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फोर्थ पार्ट, परपेंडिकुलर टू लाइन। हमें एक क्वेश्चन निकालनी है लाइन की, जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर, कौन सी लाइन पे परपेंडिकुलर है, जो लाइन B और S से पास होती है। तो पहले हम स्लोप निकाल लेंगे BS का, BS लाइन जो भी होगी उसका स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और से स्लोप आ गया आपका 4 डिवाइडेड बाय -6। यहां से आपकी ये जो आपकी पास स्लोप आई है लाइन BS का, स्लोप ऑफ लाइन BS मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ द लाइन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू -1। ये तो आपका M2 हो गया। M1 कितना है आपको निकालना है, M1 कैसे निकलेगा, इसको रिवर्स करेंगे और साइन चेंज करेंगे, M1 डॉट M2 क्या होगा, -1 परपेंडिकुलर लाइंस का। तो यहां से आपके पास M1 आ गया 3/2। क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं P और Q, 3,3, और Q कौन सा पॉइंट है, 7,6। क्या कह रहा है सर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ लाइन इन C इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। वो पूछ रहा है उस लाइन की डिस्टेंस पूछ रहा है, या उस लाइन का मेजरमेंट पूछ रहा है जो दोनों एक्सिस के बीच में लाई करती है। तो सर दोनों एक्सिस के बीच में लाई करती हो तो तब कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमारे पास दोनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जहां वो लाइन उन एक्सिस को काट रही है। तो पहला कोऑर्डिनेट निकालने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तुम सर इक्वेशन जो है वो निकालेंगे लाइन की जो दो पॉइंट से पास हो रही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस x1। ये फॉर्मूला आपके पास 2 पॉइंट फॉर्मूला, वहां से आपने इक्वेशन पता चल गई आपको क्या है, 4y माइनस 3x इज इक्वल टू 3। अगर ये इक्वेशन ऑफ लाइन x एक्सिस पे होगी तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0, y 0 हो जाएगा, तो y 0 रख देंगे, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो जो कोऑर्डिनेट आएगा आपके पास वो कोऑर्डिनेट आ जाएगा जहां ये लाइन x एक्सिस को मीट करती है, दैट इज -1, 0। ऐसे ही आप y एक्सिस पे निकालेंगे, y एक्सिस पे क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट 0, y। आप इक्वेशन में डालेंगे 4y माइनस 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 3। यहां से आपने y की वैल्यू निकाल ली। अब आपके पास वो पॉइंट आ गया जहां ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, वो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0, 3/4। अब इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग तो हमारे पास वो पोर्शन आ जाएगा जो लाइन का एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पॉइंट आ गया, आपके पास ये पॉइंट आ गया, इन दोनों की दूरी निकाल लेंगे तो वो पोर्शन आ जाएगा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है। ये पोर्शन निकालना, क्लियर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। पॉज करें।
Question number 11, second part, coordinates of T. You have to find out. See, question number 11, we are given A, B, C, three vertices of a triangle, vertices of a triangle. Coordinates 10, 4, -4, 9, C is -2, -1. It says that find the equation of side AB. First part says find the equation of side AB. बहुत easy है, आपके पास दोनों पॉइंट्स हैं, सेम फॉर्मूला आएंगे, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, वहां से स्लोप निकल जाएगी, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1. अब इन दोनों से स्लोप निकाल देंगे. We will be discussing the tough parts. 11th second part says the equation of median through A. A से जो मीडियन जा रही है, AT is the median. सर मीडियन क्या होती है? मीडियन वो लाइन होती है जो एक लाइन सेगमेंट पे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. मींस BT किसके बराबर हो जाएगा? TC के बराबर. ये डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. कहां से आ रही है? A से. कहां से आ रही है? पॉइंट T. AT क्या है? मीडियन. इस लाइन सेगमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. मीडियन हमेशा याद रखिए, द कोऑर्डिनेट्स जो ये डिवाइड कर रही है दो पार्ट्स में, तो ये क्या होगा? मिड पॉइंट हो गया. मिड पॉइंट विल बी कैलकुलेट ऑफ B एंड C. लाइन BC का मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी द पॉइंट T. पॉइंट D कैलकुलेट किया, -4 - 2 डिवाइडेड बाय 2, 9 - 1 डिवाइडेड बाय 2. से कहां से आया? x1 + y1 by 2, x2 + y2 by 2. सर x1 हो गया -4, y1 हो गया 9, ये हो गया x2, ये हो गया आपका y2. x1 y1 x2 y2. आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स आपने यहां सब्स्टिट्यूट किया, x1 + y1 by 2, x2 + y2 by 2. आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए t के -3 और 4. सर इक्वेशन कैसे निकलेगी मीडियन की? अब आपके पास A पॉइंट भी है, आपके पास P पॉइंट भी है. सेम चीज सर, 2 पॉइंट फॉर्मूला, y - y1 is equals to y2 - y1 divided by x2 - x1 m x - x1. Same, y - y4, y2 - y1, x2 - x1, x - x1. You substitute the values of these 2 points in the formula, you calculate the equation of line. That will be y is equals to 4. तो AT जो मीडियन है उसकी इक्वेशन क्या आ गई? y is equals to 4. थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज स्लोप AC हम निकाल सकते हैं. स्लोप AC कैसे निकाल लेंगे? y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1. आपके पास स्लोप आ जाएगी AC की. थर्ड पार्ट में पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू B. एल्टीट्यूड कौन सा सर? एल्टीट्यूड इज BP. ये क्या है? BP क्या है? एल्टीट्यूड. BP इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल. एल्टीट्यूड का मतलब है परपेंडिकुलर होगा. किस पे परपेंडिकुलर होगा सर? AC लाइन पे परपेंडिकुलर होगा. इसका मतलब AC का जो स्लोप आएगा उसको आप रिवर्स करें और साइन चेंज करें, दैट विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन BP. हमें BP का स्लोप चाहिए क्योंकि पॉइंट है हमारे पास. क्या चाहिए? या तो आपको 2 पॉइंट चाहिए या आपको 1 पॉइंट 1 स्लोप चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए. अभी तक आपने देखा है 1 पॉइंट फॉर्म में, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म में 1 पॉइंट चाहिए होता है, 1 स्लोप चाहिए होता है. पॉइंट आपके पास -4, 9 है, स्लोप चाहिए. स्लोप कैसे निकलेगा BP का? सर BP परपेंडिकुलर किस पे? AC पे. तो AC लाइन का आप स्लोप निकालें, उसको रिवर्स करें और साइन चेंज करें. इधर देखें, स्लोप ऑफ BP डॉट स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू -1. आपने यहां से स्लोप ऑफ BP निकाल ली, कितनी आ गई? -12/5. अब आपके पास स्लोप आ गई, आपके पास पॉइंट दे रखा है. पॉइंट तो आपके पास -4, 9, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1. वहां से आपने कैलकुलेट कर ली. क्वेश्चन नंबर 12, इट्स इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा ट्रिकी है, बट देयर आर द 3 पॉइंट्स A B C. आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं A B एंड C, 4, 0, 2, 2 और 0, 6. देखिए पहले क्या कह रहा, इस क्वेश्चन को जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं, रिमेंबर स्टूडेंट्स, दोस्त क्वेश्चन विच आर वेरी लेंथी, ब्रेक द क्वेश्चन इन पार्ट्स. हम पहली लाइन पढ़ेंगे सिर्फ. AB प्रोड्यूस्ड कट्स द y एक्सिस एट P, फुल स्टॉप. वहीं जहां एक लाइन खत्म हुई है, एक सेगमेंट खत्म हुआ, वहीं रुके हैं. सोचे उसके बारे में क्या कर सकते हैं. AB प्रोड्यूस कट्स y एक्सिस एट P. क्योंकि y एक्सिस पे कट हो रहा है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, y. x हमेशा 0 होता है y एक्सिस पे. AB प्रोड्यूस का मतलब क्या? AB को खींचा गया है, जहां उसको एक्सटेंड किया गया है. इट कट्स द एक्सटेंडेड वर्जन कट्स द y एक्सिस एट
P। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, y। A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 4, 0, B के 2, 2 ये गिवन है। हम इक्वेशन निकाल लेंगे लाइन ऑफ AB। AB लाइन की इक्वेशन क्या आएगी y minus y1 y2 minus y1 डिवाइड बाय x2 minus x1 x minus x1। आपने कोऑर्डिनेट्स डाल दिए, वैल्यू कैलकुलेट करी, इक्वेशन आ गई आपके पास x plus y is equals to 4। ये AB लाइन की इक्वेशन है। क्योंकि इसी लाइन को आगे बढ़ाया गया या एक्सटेंड किया गया है, और ये एक्सटेंडेड लाइन या जो बढ़ाई गई लाइन है ये y एक्सिस पे कट कर रही है। दैट मींस इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो y की वैल्यू आ गई 4। कौन से पॉइंट पे कट करेगी 0, 4। सर इसका मतलब क्या डायग्राम समझाएंगे? बिल्कुल समझाएंगे। डायग्राम से क्या मतलब आएगा इससे? अगर कोई भी लाइन है मेरे पास, सपोज ए बी थी, ये बी है, ये लाइन ए है, ये पॉइंट ए था, ये बी था। कह रहा सर ए बी पॉइंट को एक्सटेंड किया गया, मतलब बढ़ाया गया, मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया। ये कहां काट रहा है? वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रहा है। ये पॉइंट कैसे निकलेगा सर? इक्वेशन ऑफ लाइन जो ए बी की है, अगर उस इक्वेशन में आप x को 0 कर दोगे तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। वही किया हमने, x को 0 कर दिया, y क्या आ गया 4। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर? y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, y। तो क्योंकि यहाँ y की वैल्यू क्या है 4, तो वैल्यू क्या आ गई 0, 4। पॉइंट P जो है वो क्या आ गया 0, 4। सर CB प्रोड्यूस अर्थ एक्स एक्सिस एट Q। तो सिमिलरली ऐसे ही CB के लिए भी है। CB को प्रोड्यूस किया गया कट्स एक्स एक्सिस। सपोज लाइन CB थी, ये C पॉइंट ये था, B ये था, इसको एक्सटेंड किया गया, इसने कट कहां किया? एट Q पॉइंट पे कट किया। Q कहां लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x, 0 विल बी दी कोऑर्डिनेट्स। x, 0 विल बी दी कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली आप इसमें निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन CB। कैसे निकालेंगे? y minus y1 is equals to y2 minus y1 x2 minus x1। सेम फॉर्मूला। You will be getting the equation as 4x plus 2y is equals to 12। अब क्योंकि ये पॉइंट जो है Q पॉइंट कहां लाई कर रहा है सर? x एक्सिस पे लाई कर रहा है। किस पे लाई कर रहा है? x एक्सिस पे। तो y क्या हो जाएगा 0। जहां y आ रहा है वहां 0, y आ रहा है 0 हो गया। 4x आ गया 12 के बराबर, x आ गया 3 के बराबर। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका? Q क्या हो गया 3, 0। आपके पास P भी आ गया, Q भी आ गया। अब वो कह रहा है सर एक और लाइन निकालनी पड़ेगी जो कि AC का मिड पॉइंट है, उससे पास हो रही है। मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ A एंड C। तो आपके पास A की कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, C की कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे x1 plus x2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय y1 plus y2 डिवाइडेड बाय 2। सर इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि ये जो मिड पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 12 में जो मिड पॉइंट दे रखा है आपको, वो क्या कह रहा है उस मिड पॉइंट के लिए? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P एंड Q। तो हमने निकाल लिए। इफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ AC, AC के मिड पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास होगी और कहां जाएगी? OB तक। एंड OB, O क्या है? ओरिजिन। P आपको दे रखा है। OB का मिड पॉइंट निकाल लो, AC का मिड पॉइंट निकालना है, फिर OB का मिड पॉइंट निकालना है। सेम x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। अब आपके पास दोनों के मिड पॉइंट आ गए। इन दोनों के मिड पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है। तो हमने इक्वेशन निकालने का, कैसे निकलेगी सर इक्वेशन? आपके पास OB का मिड पॉइंट है, आपके पास AC का मिड पॉइंट है। आपको पता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला विल बी यस 2 पॉइंट फॉर्मूला। y minus y1 is equals to y2 minus y1 x2 divided by x2 minus x1 x minus x1। तो सर आपके पास कोऑर्डिनेट्स है 2, 3 और 1, 1। सब्स्टिट्यूट करें फॉर्मूले में, सेम 2 पॉइंट फॉर्मूला, वहां से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन 2x minus 1। तो लास्ट पार्ट में वो कह रहा है कि वेरीफाई करो कि ये जो लाइन इक्वेशन आई है आपके पास, वो जो आपने दो पॉइंट है AC के मिड पॉइंट से और OB के मिड पॉइंट से जो पास हो रही है, ये जो लाइन है दैट शुड पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ PQ। ये जो लाइन आई है ये PQ के मिड पॉइंट से भी पास होनी चाहिए। तो लेंथी करने के लिए उसने ये वेरीफाई करवा दिया। अब वेरीफाई कैसे करेंगे? ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है टू वेरीफाई 2x minus y minus 1 is equals to 0। ये पास होती है PQ के मिड पॉइंट से। पहले तो P और Q का मिड पॉइंट निकाल देंगे, सेम x1 plus x2 डिवाइड बाय 2 y1 plus y2 डिवाइड बाय 2।
आपके पास मिड पॉइंट आ गया पी क्यू का। अगर कोई भी लाइन उस पॉइंट से पास हो रही है तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब क्या करेंगे, एलएचएस बराबर किसके आ जाएगा, आरएचएस के। तो आप इस 3,2 को सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन ऑफ लाइन में। x की जगह क्या आ जाएगा 3/2, y की जगह क्या आ जाएगा 2। सब्स्टिट्यूटिंग, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग यू विल बी गेटिंग 3 - 2 - 1। 3 - 3 कितना हो गया 0। एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया। Hence it verifies the point 3,2, 3/2, that is the midpoint of PQ lies on the line 2x - y - 1. Satisfies. Next question. Question number 13. ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी conceptualized question. A line through the point 3,0. एक पॉइंट है 3,0 से L पॉइंट है, वहां से लाइन ये आ रही है, इट पासेस थ्रू दैट पॉइंट एंड मीट्स द वेरिएबल लाइन। वेरिएबल लाइन का मतलब एक दूसरी लाइन है जो इंडिपेंडेंट है, उसको मीट करती है। उस लाइन का नाम क्या है, y = tx। अब सर ये जो लाइन L पॉइंट से आ रही है, जो दूसरी ये पहली वाली लाइन जो L पॉइंट से आ रही है, ये y = tx वाली लाइन को मीट करती है। किस पॉइंट पे मीट करती है, P पॉइंट पे। तो उसको हमने नाम दे दिया उसकी कोऑर्डिनेट्स को x, y। जूम कर लीजिए x, y। अब हमें निकालना सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन y = tx। सर इस लाइन का स्लोप क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x होता है हमेशा स्लोप स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के बाद। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्यों सर, y = mx + c। c तो यहाँ 0 है और m क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x को कितना है t। y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। x का कोफिशिएंट क्या है t, तो ये स्लोप आ गया आपके पास लाइन का t। स्लोप ऑफ लाइन PL कैसे निकलेगा सर, क्योंकि ये लाइन tx वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, उल्टा करें और साइन चेंज करें, रिवर्स एंड साइन चेंज द साइन। स्लोप ऑफ PL डॉट t = -1, m1 डॉट m2 कितना होता है -1। तो यहां से आपने स्लोप ऑफ PL निकाल लिया, वो कितना आ जाएगा -1/t। क्या आ जाएगा स्लोप आपके पास PL का -1/t। अब सर हमें पता करना है कि लाइन PL की इक्वेशन क्या है। सर आपके पास स्लोप तो आ गया और एक पॉइंट भी है 3,0। अब इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, y = mx + c होती है हमें पता है सर इक्वेशन ऑफ लाइन, स्टैंडर्ड लाइन क्या होता है, y = mx + c। क्योंकि स्लोप क्या हमारा लाइन का, PL लाइन का स्लोप क्या है -1/t। तो जहां m आ रहा है वहां क्या डाल देंगे हम -1/t। तो क्या हो गई इक्वेशन आएगी, y = -1/t x + c। सर x की जगह हम 3 रख सकते हैं और y की जगह 0 रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर ये है तो इक्वेशन PL की, और PL की लाइन पे L पॉइंट लाई करता है जिसकी वैल्यू क्या है 3,0। x की जगह 3 रख देंगे, y की जगह 0 रख देंगे। सर ये क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है c की वैल्यू। यहां से हमने c की वैल्यू निकाल ली। अब इक्वेशन चेंज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, इक्वेशन लिख, therefore the equation becomes y = -1/tx प्लस c की जगह मैं वो रख दूंगा जो वैल्यू मैंने अभी निकाली है, क्या है 3/t। अब सर एक इक्वेशन हो गई मेरे पास ये लाइन की जो है PL लाइन की, और ये एक दूसरी लाइन है मेरे पास y = tx। PL की इक्वेशन आ गई और tx तो दे रखी है, सेकंड वाली लाइन भी दे रखी है आपके पास। सर अब हमें क्या करना है, सर हमें पता है y किसके बराबर है, tx के। तो ये जो पहली वाली इक्वेशन है लाइन की, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं tx। तो जहां y आ रहा है वहां हमने क्या रख दिया tx। पॉइंट P पे तो दोनों लाइन मीट कर रही है ना, ये जो पॉइंट P है ये PL लाइन पे भी लाई करेगा और y = tx लाइन पे भी लाई करेगा। तो जो y = tx है, तो y की वैल्यू जो tx है वो हम PL वाली लाइन में रख सकते हैं। y की जगह रख दिया हमने tx रख दिया। नाउ tx becomes tx = -1/tx + 3/t। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई t के टर्म्स में 3/t² + 1। अब इसी x की वैल्यू को अगर मैं यहां डाल दूंगा y = tx वाले में, तो हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी 3t / t² + 1।
तो आपके पास x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसका मतलब आपके पास पॉइंट P आ गया जो कि क्वेश्चन में वो पूछ रहा था। सही है, पॉइंट P निकालने के बाद वो एक पार्ट और रह गया इसका, वो कह रहा है कि ऐसी वैल्यू निकालो k की, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k which satisfy the equation x square plus y square is equals to k। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, वो वैल्यू चाहिए हमें k की। तो जहां x आ रहा है वहां आप 3/t² + 1 की वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन में और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। k² + 1 या होल स्क्वायर आ रहा है तो कट जाएगा, एक बार t² + 1 आ जाएगा। आप ऊपर से 9 जो है वो कॉमन लेंगे तो 1 + t² आएगा तो वो भी कट जाएगा। 3k किसके बराबर आ जाएगा? 9 के बराबर आ जाएगा। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। सो एट वैल्यू k = 3, ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगी फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। वो क्या है? 3/t² + 1 और 3t/t² + 1। उसने p के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, हमें t के टर्म्स में वो भी हमने निकाल लिए और किस वैल्यू पे k की ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया at k = 3। So we have solved 13 questions. 2-3 questions are remaining. We'll be discussing in the next video.